Good morning, students. Today we will discuss a very important topic, quality of a good teacher. As you all will be the teacher of tomorrow. So you all have to inculcate quality of good teacher. Teacher are our friend, philosopher, guide and motivator for all students. Now I will share my presentation, characteristics of good teacher. Learning outcomes of this lecture, you all will be able to comprehend the characteristics of a good teacher. You all will analyze and understand the quality of good teacher. You all will be able to know the types of good teacher, and you all will be able to inculcate the quality of good teacher. First quality of good teacher, knowledge of the subject matter. You can't teach what you do not know. So an teacher must be master of his subject. Any weaknesses on his part will decrease his prestige in the eyes of his student. Besides, he must love his subject and continue building his understanding of his subject throughout his career. Next quality of teacher, patience. No teacher should be accepted to have much patience with individuals whose lack of discipline, immaturity, or indolency interrupts the work of other students. Patience with students who are trying to learn, however, is part and praise parcel of the teaching profession. Importance with science student is an indication of the teachers on shortcoming. Next quality of a teacher, intellectual curiosity. A good teacher are intellectually curious and naturally driven by their interest in keeping abstract of changing in their field. Next quality of good teacher, achievement. Experienced teacher have clear thoughts on what their student should know at the end of the term. They understand what they must do along with way in order to reach those goals. Awareness. Teacher in elementary and secondary school must have eyes in the back of their heads. They need to be aware of everything that happens in their classroom and in the school. Teachers who are awake are able to stop nonsense before it start and keep a student on track. Next quality of teacher, maturity. In no profession is maturity more important than in teaching.
Student experiences emotional ups and down, and insightful teacher are able to sense the changes and response to them appropriately. Teacher must be pillars, consistently encouraging student to grow as human being and to develop academically. Community involvement, maintaining good community relation is part of being a teacher, and teachers contact with parents, administrators, and community leaders enhance their effectiveness in the classroom. Next quality of good teacher, organization. One on one tutoring is easy compared to leading classroom of a student in a single direction. Teacher must be able to manage student multiple personalities and organize their subject matter so that a maximum number of students benefits from their presentations. Next quality of good teacher, mission. Perhaps the most important thing teacher communicate to student and to the community is a sense of satisfaction with their choice of teaching as their life mission. Teaching at its highest level is a calling, and good teacher feel it to their course. Enthusiasm, next quality of good teacher. Excellent teacher never lose enthusiasm for their profession. They might come temporarily burdened by administrative, hassles, or isolated problems, but their underlying engagement with their work is unwavering. Student feel his energy, and teachers who project it are much more successful than those who do not. Idle character. A good teacher should be a model in the character. His attitude should be passive worthy. He should be good habit. He should be ethical. He must be the follower of follows educational values like truth, equality, and justice. It proves often through observation that most of the students idolize their teacher. Therefore, a teacher should not be victim of smoking, bad company, wandering. This is the most important characteristics of teacher. क्योंकि अगर एक टीचर आइडल नहीं होगा तो वो बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाएगा. इसलिए टीचर को हमेशा आइडल होना चाहिए और उसे
एक उच्च आदर्श वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, बैलेंस पर्सनालिटी। A ideal teacher have always a balanced personality. Teacher always keep his emotion in control. Teacher establish the atmosphere of cooperation instead of quarreling with others. Teacher choose moderation instead of terrorism. Next quality of good teacher, literary interest. Literary interest is one of the characteristics of an ideal teacher. A teacher is always the fount of the literature. Teacher has interest in studies. He harmonizes his knowledge with the age of demands with the help of own best. Newspaper, magazine, radio, TV, due to extensive studies. Teacher can easily answer of the student out of the syllabus also. टीचर में हमेशा लिटरेचर पढ़ने का रुझान होना चाहिए। अगर टीचर में पढ़ने का रुझान होगा तो वो बच्चों में अधिक से अधिक जो नॉलेज है उसे ट्रांसफर कर पाएगा, वो बच्चों के क्वेश्चन है उनके आंसर दे पाएगा। तो उससे जो बच्चे हैं उसका रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे और उसे अपने एक आइडल के रूप में मानेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टीचर की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिटरेसी। जैसे कि हमने इसकी फर्स्ट स्लाइड में देखा था, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर उसे सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैटर का ज्ञान है और बाहर से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चा, अगर वो नहीं दे पाता है तो वो क्या होगा उसके प्रोफेशन के लिए, उसके स्वयं के लिए और बच्चों की नजर में उसको अपनी प्रतिष्ठान बनाने के लिए गलत होगा। इसीलिए टीचर को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, लिटरेचर में अपना इंटरेस्ट रखना चाहिए और अपने ज्ञान का संवर्धन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, लव विथ टीचिंग। An ideal teacher always love his profession. Teacher perform her duties understanding it as worship. Teacher know that her profession is like that of a creator. Teacher feel pleasure in transferring his knowledge of the student. Next, characteristics of good teacher, professional skills. An ideal teacher is a person who possesses the professional skill. She has professional education and know the latest teaching method. A good teacher always know the teaching skill. हम सब टीचर हैं, आप पीपल टीचर हैं, आप भविष्य में एक अच्छे टीचर बनेंगे। उसके लिए आपके पास में एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। आप वो प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, साथ साथ में आप क्या कर रहे हैं, अपने अंदर जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, वो इनकलकेट कर रहे हैं। उससे क्या होगा
कि आप अपने भविष्य में एक अच्छे टीचर बन पाएंगे। हमने अपनी फर्स्ट यूनिट में टीचर की प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। टीचर में बहुत सारी प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए, उसको बहुत सारी प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए। आप माइक्रो टीचिंग में जो विभिन्न कौशल हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं, तो वो अभ्यास क्यों कर रहे हैं? ताकि आप में जो एक अच्छे टीचर की जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, awareness to children growth. A good teacher should be aware the psychology of the children and different stage of the growth of the children. She must be aware the physical, emotional, mental and social problem of the children. In this way, teacher can teach student effectively. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ टीचर की, कि टीचर को अपने स्टूडेंट के प्रति क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने अपनी जो साइकोलॉजी की जो किताब है, या आपको हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का जो टॉपिक है उसमें बच्चों की ग्रोथ, डेवलपमेंट और इमोशन, इसके बारे में बताया जाता है, ताकि आप क्या करें, उस स्टेज के अकॉर्डिंग बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसे आप क्या कहें, समझ पाए, देख पाए और उसके अकॉर्डिंग उसकी मदद कर पाए। तो ये सब चीजें आपको अवेयर रखनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ताकि आप क्या करें, बच्चों की मदद कर पाए बच्चों की आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, टीचिंग मेथड्स। The latest research has introduced new way of teaching in educational field. In old educational system, the teacher was the center of education, but nowadays the educational activity revolves around the personality of the children. In view of children, different activity based method of teaching have been introduced as activity based method. An ideal teacher use the teaching method according to the ability of the teacher. हमने अपनी मेथोडोलॉजी की क्लास में ये पढ़ा है कि कितने प्रकार के टीचिंग मेथड होते हैं। हमारे पास जनरली 3 प्रकार के टीचिंग मेथड होते हैं: टीचर सेंटर टीचिंग मेथड, लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड और पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड। टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में टीचर अपनी योग्यता, क्षमता, इंटरेस्ट और टॉपिक के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड का यूज करता है, और लर्नर सेंटर मेथड में वो बच्चों की योग्यता, क्षमता, उनका इंटरेस्ट और उनकी एज को ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड चूज करता है, कि बच्चे को इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड को चूज करता है। और पार्टिसिपेटरी मेथड में जो टीचर है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, और जो बच्चे हैं लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। इसमें जो प्रैग्मेटिज्म थ्योरी है उसको काम में लिया जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, बच्चा करके सीखता है, तो वो क्या है, पार्टिसिपेटरी मेथड हो गया, रोल प्ले हो गया। इस तरह के जो मेथड है उसमें बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखता है। तो ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता ही होगा कि जो टीचिंग मेथड्स हैं वो कौन से यूज करने चाहिए।
नई जो रिसर्च सामने आई है उससे ये पता चलता है कि जो टीचर सेंटर की जगह जो चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड है वो टीचर को अधिक यूज करने चाहिए, ताकि जो बच्चों के जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड करे हैं वो प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, पोलाइट एटीट्यूड। पोलाइटनेस is another characteristics of a good teacher. Teacher conquers the heart of others through his or her good behavior and politeness. टीचर को पोलाइट होना चाहिए। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में ये भी देखा है कि टीचर में पेशेंस होना चाहिए, है ना। तो पेशेंस के साथ साथ में पोलाइट भी होना चाहिए। तो वो पोलाइट होगा तो क्या करेगा, बच्चों से धैर्यपूर्वक बात करेगा, उनसे अपने घनिष्ठ संबंध बनाएगा, है ना। घनिष्ठ संबंध मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी स्टूडेंट में, और जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी तो जो हायर अचीवमेंट होगा। तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि टीचर को क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, उसका व्यवहार मधुर होना चाहिए, उसकी वाणी में मधुरता होना चाहिए, और वो बच्चों की जो परेशानियां उसे क्या करे, ध्यान पूर्वक सुने, और ध्यान पूर्वक सुनने के बाद में उस समस्या का क्या करे, समाधान करे। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, love for profession. The teacher should feel the importance of his profession. He must give his exclusive attention to the growth and development of the personalities of the children under his age. सबसे महत्वपूर्ण है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन से प्यार करता है, अपने प्रोफेशन को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करता है, तो वो अपनी क्वालिटीज को और इन्हांस करता जाता है और उस प्रोफेशन के प्रति डिवोशन और डेडिकेशन के साथ क्या करता है, काम करता है। इसीलिए टीचर को हमेशा अपने प्रोफेशन से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और जब वो अपने प्रोफेशन से प्यार करता है तो वो क्या करता है, उसके लिए प्राउड फील करता है और अपने प्रोफेशन में हायर अचीवमेंट प्राप्त करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, डेली प्रिपरेशन। Perhaps there is no type of work where the result of poor planning are so devastating as in teaching. Careful and systematic arrangement of the subject matter and the classroom activity is conducive to create discipline. A well-prepared lesson helps to overcome the feeling of nervousness and insecurity, especially in the first attempt at teaching. टीचर को हमेशा क्लास में जाने से पहले अपनी डेली जो प्रिपरेशन है वो कर लेनी चाहिए। कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कौन सा टीचिंग मॉडल यूज करना है, तो उससे क्या रहेगा, टीचर क्या रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा और वो क्लास में नर्वस नहीं होगा और जो उसे काम करने आया है वो प्रॉपरली करेगा। तो इसीलिए उसे अपनी
जो दैनिक कार्य है वो उसकी प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, पहले ही कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, स्केल इन क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग स्केल हम अपनी जो माइक्रो टीचिंग है उसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चनिंग स्केल क्या होता है। मैं नहीं समझती इस पर बहुत ज्यादा परिचर्चा भी करने की आवश्यकता है। द सक्सेस ऑफ ए क्लास टीचर in the class also depend on the art of questioning. One who questioning faultlessly teaches effectively. With the help of right types of question, a wise teacher can lead the student from dark and unknown region to know and bright ones. हम सभी जानते हैं कि क्लास में हम जाते हैं तो बच्चों के नॉलेज को चेक करने के लिए, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो क्वेश्चनिंग स्केल है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर, कि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, राइट क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, यूज ऑफ मटेरियल एड्स। Various teaching aids bring clarity and vividness. It is a great asset of the teacher to narrate stories and codes which appear to the children at different age and different attainment level. Abstract word and phrases can be made clear by illustration. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के टीचिंग एड होते हैं। ऑडियो टीचिंग एड्स, विजुअल टीचिंग एड्स एंड ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। 3 प्रकार के होते हैं। क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, क्लास के साइज के अकॉर्डिंग और टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, टीचिंग एड का यूज करना चाहिए। एक अच्छा टीचर बच्चों को तभी एक्सप्लेन कर पाएगा जब वो अच्छा टीचिंग एड यूज करेगा, और टीचिंग एड यूज करने से बच्चों में जो क्लियरिटी आएगी और वो जो उनमें व्यवहारगत परिवर्तन है वो जल्दी से हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं वो कितनी देर तक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उन्हें समय समय पर टीचर को अच्छे टीचिंग मटेरियल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, गुड लीडर। A good teacher should be a good leader and good friend. He should also be a disciplinarian and the student must look up him. और हम सभी जानते हैं कि जो अच्छा शिक्षक होता है वो अच्छा लीडर भी होता है, और वो अपने बच्चों को अच्छे काम करने के लिए इनिशिएट करता है और उनमें अच्छी क्वालिटीज डेवलप करता है। तो अच्छा टीचर अपने बच्चों में एक अच्छा लीडर होता है और वो अपने बच्चों को अच्छा लीडर बनाने की कोशिश करता है।
Next quality of good teacher, good communicator. One of the most important attribute of a good teacher is to be a good communicator. Teacher should be comfortable explaining things and enjoy doing the same. टीचर जब तक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होगा, उसमें उसमें कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, उसको कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, वो जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो अपने बच्चों तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। इसीलिए एक टीचर को अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, ताकि वो क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, वो अपने बच्चों को और स्टूडेंट को इजीली समझा सकेगा। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, गुड वॉइस. द वॉइस ऑफ द टीचर शुड बी क्लियर. A thin, low voice develop dullness in the class. A very high pitched voice must be avoided. It distracts the mind of the student and does not appeal to their aesthetic sense. जैसा कि हमने अभी और बात करी कि टीचर में पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ साथ में पोलाइट होना चाहिए और अच्छी वाणी होनी चाहिए, वॉइस अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छी वाणी से मतलब ये नहीं है कि आप चाशनी में शब्द डुबो डुबो के बोले। यहाँ पर वाणी से मतलब है कि ऐसी वाणी होनी चाहिए कि बहुत स्लो नहीं होनी चाहिए कि पीछे के बच्चे सुनो ही नहीं तो डलनेस आ जाए, आप मन ही मन में बोले जा रहे हैं, वो नहीं। और इतना जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए कि ऐसा लगे कि आप लड़ने के लिए आए हैं। तो अपनी जो वॉइस है उसमें क्या करना चाहिए, बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। शब्दों के अनुसार, भाव के अनुसार उसमें उतार चढ़ाव होने चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो वॉइस है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, गुड मेमोरी. ए टीचर with a poor memory, ridiculous, it become easier for a teacher having good memory to correlate many things. A good creative memory is one of the qualities that differentiate the good teacher from the mediocre. अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैम मेमोरी तो कैसे गुड करेंगे, तो आप समय समय पर अभ्यास करेंगे, वर्कशॉप सेमिनार अटेंड करेंगे, नई रिसर्च को पढ़ेंगे, क्लास में जाने से पहले अपना डेली प्रिपरेशन करेंगे, तो क्या होगा, आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी। और बच्चों के बारे में, जैसे बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे को कहाँ समस्या है, और बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों का नाम लेकर संबोधन करेंगे, तो क्या होगा, आपके और बच्चों के जो रिलेशनशिप है वो क्या होगी, पॉजिटिव होती जाएगी, है ना। और उससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो आपके क्लोज आता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ गुड टीचर, गुड vitality. Good vitality is essential to successful, not only in its relaxed influence upon the children, but also in making possible continuity of work with the fewest possible interruption from illness because of journal fatigue.
Next quality of good teacher, democratic attitude. A teacher who is to show the way of democracy to the student must develop in himself a democratic attitude. His her role of a friend, philosopher, guide, and not of a policeman. ये हम कई बार पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि टीचर में ड्रामेटिक एटीट्यूड होना चाहिए. उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दमनात्मक प्रवृत्ति का हो कि वो क्लास में किसी की बात ही ना सुने. उसको सभी बच्चों को मौका देना चाहिए अपने बात कहने की और उन्हें सुनने का, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए. और इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात को, अपने विचारों को क्लास में कह पाए. तो ये हमने कुछ एक क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर देखी है. हम क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर को या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर को एक क्लास में या एक साल में नहीं समझ सकते कि जिस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उसी प्रकार से टीचर में अलग अलग क्वालिटीज होती है. ये हमने कुछ क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर ली है. इसके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर होती हैं. आप लोगों को ये आज का होमवर्क है कि आप लोग ग्रुप वाइज अपने आप को डिवाइड कर लें. एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट होंगे और इन क्वालिटीज के अलावा कौन कौन सी क्वालिटीज एक गुड टीचर में होती है वो राइट डाउन करेंगे. और फिर जब 10-10 का, जैसे अपने अपने यहाँ पर इस समय बीएड में बच्चे हैं 100, तो उसको 10-10 का ग्रुप हो जाएगा, तो 10 ग्रुप हो जाएंगे. फिर वो 10 ग्रुप को मैं ब्लैक बोर्ड पे बुलवा कर एक एक बच्चे से उसकी जो नई क्वालिटी, पुरानी जैसे मान लो आपने 10 में से अलग अलग लिखी, फिर हम ब्लैक बोर्ड पे बुलवा के उनको एक एक लिखेंगे और जो कॉमन होगी उनको हटाते हुए जाएंगे और नई क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर भी हम देखेंगे. ये आज का होमवर्क है. अब मैं आपसे आज की जो क्विज है वो आपको शो कर देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है. आप लोग देखते जाइए और इसे राइट डाउन करते जाइए. द एम ऑफ टीचर शुड बी टू डेवलप social awareness in the student, to prepare a student for examination, to develop vocational skills in the student, to prepare a student for practical life. इसका आंसर आप लोग अपनी शीट में लिख लीजिए. मैं किसी भी बच्चे से इसका आंसर पूछ लूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू द टीचर, तो टीचर को क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शन आप देख लीजिए और इसका आंसर भी आप मुझे भेज देना. The quality of school's education is exclusively depend upon next question, most important task of teacher is to take care of children, to evaluate
the student to organize teaching work, to deliver lecture in the class. इसमें 5 ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन आर द better teacher at primary level because higher qualification is not needed at this profession. They have least chance in another profession. They are ready to work with low salary. They behave more patiently with children. इसका ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टूडेंट कम्स लेट इन द क्लास then teacher will punish him, not pay attention to him, try to know the reason, inform to parents. 4 ऑप्शन है इसके, आप देख लीजिएगा कौन सा इसका आंसर सही है, फिर मुझे इन्फॉर्म की दीजिएगा, फिर हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि इसका आंसर ये वाला सही क्यों है। द सक्सेस ऑफ ए गुड टीचर इज his her good character, high achievement of student, his her good teaching, good trait of his her personality. Next question है, you are teaching a topic in class and student asks question irrelevant to the topic. What you will do? You will allow him to ask unrelated question. You will consider it as indiscipline and punish him. You will not allow him to ask unrelated question. You will answer the question after the class. Next question है MCQs का. This is the last question. What should be the role of teacher in meeting the individual difference? Try to know abilities, interest, and aptitude of individuals. Try to adjust the curriculum. Try to adjust the teacher. None of the above. तो आज हमने अपनी क्लास में क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर देखा। इन क्वालिटीज के अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है एक टीचर में, क्योंकि टीचर क्या होता है, एक निर्माता होता है। जिस प्रकार से एक माली बगीचे में जाकर पौधा लगाता है, उसकी समय समय पर उसे पानी, खाद और उसकी ट्रिमिंग करता है, उसी तरह से टीचर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लास के अंदर और क्लास के बाहर। तो टीचर की जो क्वालिटीज है उसे कुछ स्लाइड में या एक पीरियड में हम कंप्लीट नहीं कर सकते। टीचर की जो क्वालिटीज है वो अनगिनत क्वालिटीज है, क्योंकि यहाँ पर वो एक निर्माता के रूप में काम करता है। तो जैसा मैंने अभी आपको होमवर्क दिया ही हुआ है कि आप लोग क्या करेंगे, टीचर की जो क्वालिटीज है, टीचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और हम लोग उस पर और परिचर्चा कर लेंगे।
तो आज का हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में क्वालिटीज ऑफ गुड लर्नर या स्टूडेंट की बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्वालिटीज ऑफ गुड लर्नर और टीचर के लिए तैयार रहिए, प्रिपरेशन करके आइए। हैव ए गुड डे।